Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 11th NCERT for class 11 chapter 6 Anatomy of Flowering Plants. As you know already, we have completed with the 5th chapter. Today we are proceeding with the 6th one. You can very easily see the structural similarities and variations in external morphology of the larger living organism. आपने स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ भी देखी हैं, वेरिएशंस भी देखने हैं, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं, प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल. इफ़ वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर and find similarities as well as differences, then this internal structure which we are going to study the functional organization in case of the higher plants, or means how they are organized, how they are arranged in higher plants. Study of the internal structure of plant is called anatomy. What is anatomy? The study of internal structure of plants is called anatomy. Plants, they have the cells as the basic unit. Cells, organized cells combine to form tissue. Group of cells similar in origin, structure and function, it is called tissue. And in turn, different types of tissues together forms the particular organs or part of the cell. And these different organs in plants show differences in their internal structure. ये जो organs plants में है अपने बहुत ही ज़्यादा difference शो करते हैं, as in angiosperm, monocots and dicots. If anatomically we see, अगर monocots और dicot anatomical structure, तो internal structures they show various adaptation. Diverse means range of the environment in which environment the plant, जैसे आपके थैलोफाइट्स हैं, आपके हाइड्रोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं, तो इन सब में डिसिमिलरिटीज मिलती हैं. सबसे पहले the tissue system. When we are discussing the tissue based on the types of cells present, so here we consider tissue very dependent on their location in the plant body. तो structure and function that also dependent on the location. ये depend करता है कि सेल और टिश्यू प्लांट्स के किस पार्ट में प्रेजेंट है. जिस पार्ट में प्रेजेंट है उसी के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा. On the basis of their structure and location, three types of the tissue system: एपिडर्मल, ग्राउंड एंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर. मतलब एक एपिडर्मल यानी आउटर कवरिंग होती है, फंडामेंटल ग्राउंड जो कि मिडिल में प्रेजेंट होता है, और दूसरा कंडक्टिंग स्ट्रैंड या वास्कुलर बंडल्स दैट इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स that which helps in the translocation of water and minerals and food. That is the conducting tissue system, right? Now first we go through the epidermal system. When we ask about the epidermal system, the epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body. That is comprises means made up of epiderm. जो epidermal system है ये हमारे plant body के outer covering को represent करता है, जिसे हम epidermal cells कहते हैं. इस एपिडर्मल सेल्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. एपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइक्रोम्स एंड हेयर, मतलब हेयर लाइक अपीयरेंस होते हैं, हेयर्स भी होते हैं. ट्राइक्रोम्स मीन्स द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइजिंग फ्रॉम देयर, द ग्रुप ऑफ, जैसे रूट हेयर्स हैं, स्टेम हेयर्स हैं जो प्रेजेंट, इनको कॉमनली ट्राइकोम्स भी बोलते हैं. एपिडर्मिस इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट. एपिडर्मिस जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स. ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं विच फॉर्म्स ए कंटिन्यूस लेयर, जो एक कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं. एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल. एपिडर्मिस जो होती है वो हमेशा सिंगल लेयर्ड होती है. ये पैरेन्काइमेटस यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ए सेल वॉल एंड ए लार्ज वैक्यूल, जो एक नॉर्मल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होता है. एंड आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस कवर्ड वैक्सी थिक लेयर. कभी कभी ये वैक्सी थिक लेयर कोटिंग, मतलब थिक वॉल भी होते हैं तो कोट डबल लेयर्ड होते हैं, तो ये थिक जो है क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है. जो थिक वैक्सी लेयर होती है उसी को ही हम क्यूटिकल कहते हैं. इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर. क्यूटिकल प्रेजेंट होने से वाटर लॉस कम होता है. एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में क्यूटिकल एब्सेंट होती है. स्टोमेटाज आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस. स्टोमेटा लीफ में, जैसे आप जानते हैं कि स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स.
एंड दे रेगुलेट द ट्रांसपायरेशन एंड द गैस। इसमें वाटर एवापोरेशन होता है और गैसोस एक्सचेंज, आप क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। एवापोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज ट्रांसपायरेशन, और साथ में गैस का एक्सचेंज भी होता है स्टोमेटल ओपनिंग से। दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसोस एक्सचेंज। ईच स्टोमा, स्टोमेटा इज प्लूरल, स्टोमा इज सिंगुलर, राइट। तो ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल। ये 2 बीन शेप्ड सेल्स का बना होता है। ये देखिए 2 बीन शेप्ड सेल्स होते हैं, इसका स्टोमा शेप्ड सेल, जिसको कि हम गार्ड सेल्स कहते हैं। इच एंक्लोज द स्टोमेटल पोर। ये देखिए स्टोमेटल पोर को ये गार्ड सेल्स, बीन शेप्ड सेल्स जो हैं ये कवर करते हैं। स्टोमेटल, द आउटर वॉल ऑफ द सेल्स स्टोमेटल पोर, द गार्ड सेल्स दे आर कॉल्ड डम्बल शेप्ड सेल्स। जैसे डम्बल, इसमें देखिए ये आपको डम्बल शेप्ड सेल्स मिलेंगे। ये गार्ड सेल्स डम्बल शेप में भी होते हैं। ये जो अपने अपने ऐसे 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 ऐसे, जो इसके साइड के सिरे जो होते हैं ये बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, दे आर थिक एंड से। सो आउटर वॉल ऑफ द सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर दे आर थिन एंड इनर वॉल्स दे आर हाईली थिक एंड। यानी कि जो इसकी बाहरी पोर होती है वो थिन वॉल्ड होती है, और जो अंदर की पोर जो खुलती और बंद होती है, ये देखिए ये जो पोर होती है ये थिक होती है, ये थिक वॉल्ड होते हैं। आउट इनर, ये थिक वॉल्ड होते हैं आउटर लेयर, और इनर लेयर जो होती है ये थिन वॉल्ड होती है। अंदर की लेयर जो होती है ये देखिए डार्क ब्लैकेंड है, ये थिक वॉल्ड होती है स्टोमेटा। समटाइम्स दे पसेस क्लोरोफिल एंड रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा के फंक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विग्निटी ऑफ द गाय। विग्निटी यानी कि इनके आसपास जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटल सेल के आसपास जो होते हैं, इनको हम सबसाइडरी सेल्स कहते हैं। और स्टोमेटल यानी किडनी शेप, ये गार्ड सेल्स और सबसाइडरी सेल्स, इनको मिला करके हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तो गार्ड सेल्स दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड दे आर नोन एज सबसाइडरी सेल्स। यानी कि इस सेल्स के जो बगल में सेल्स होते हैं ये, इनको हम सबसाइडरी सेल्स कहते हैं। तो सबसाइडरी सेल्स और स्टोमेटा, इसको मिला करके हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। मीन्स स्टोमेटा सेल्स सराउंडिंग सबसाइडरी सेल्स, टुगेदर इट इज कॉल्ड द स्टोमेटल एपरेटस। इन सब को मिला करके ये पूरा, ये गार्ड सेल्स और ये एडजेसेंट सेल्स, ये ग्रीन सेल, इनको हम मिला के बोलेंगे स्टोमेटल apparatus. अब the cells of the epidermis they bear a number of hairs. एपिडर्मल्स में हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि रूट हेयर्स, रूट में है यूनिसेलुलर, क्योंकि इनमें वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। दे हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जबकि स्टेम में जो होते हैं, जो ट्राइकोम्स होते हैं, जो सेल हेयर्स होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें ये ट्राइकोम्स शूट सिस्टम जो होता है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मे बी ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। दे में इवन सेक्रेटरी, कभी कभी सिक्रेटरी भी सब्सटेंस जैसे रबर वगैरह जो लेटेक्स है ये सभी सीक्रेट करते हैं। दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, जो कि ट्रांसपायरेशन जैसे ग्रीन हर्बेशियस स्टेम्स में, हर्बेशियस स्टेम्स में आपने अक्सर देखा होगा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये वाटर लॉस को कम करते हैं, वाटर लॉस कम करते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आप देखिए, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल दे कंस्टिट्यूट द ग्राउंड, या मतलब वस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के अलावा जो भी टिश्यूज होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू होते हैं। सिंपल टिश्यूज जैसे इसमें पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। जैसे जो डाइकोट स्टेम्स वगैरह होते हैं उनमें हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेनकाइमा भी प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो थिक स्टेम्स होते हैं उनमें पैरेन्काइमा दे आर यूजली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल में। पिथ मेडुलरी रेस जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, मीन्स प्रेजेंस अपन है। प्राइमरी स्टेम जैसे रूट्स होते हैं, तो जो इसमें ग्राउंड टिश्यूज जो होते हैं पहले थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। दे मीजोफिल सेल्स लीफ के होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है वस्कुलर सिस्टम। अब वस्कुलर सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ द टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट द वस्कुलर बंडल, मतलब जाइलम और फ्लोएम इन दोनों को मिला करके हम जो है क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल बोलते हैं। In dicot stem, cambium is present in between phloem and xylem. Such vascular bundles are in the presence of cambium. They have ability to
form secondary xylem and secondary phloem tissues, so they are called open. अगर ये देखिए, ये है मोनोकॉट, इसमें जाइलम और फ्लोएम सेपरेट बंडल्स में रेडिएट, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम। डाइकॉट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं। अगर कैम्बियम नहीं है तो ये क्लोज वस्कुलर बंडल है, और अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, इनके बीच में एक स्ट्रिप प्रेजेंट होती है सेल्स की, तो उसको कैम्बियम, और इस कैम्बियम से ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसमें ये कैम्बियम फ्लोएम ऊपर फ्लोएम के सेल्स काटता है, नीचे जाइलम के सेल्स कट होते हैं। तो ये जो होते हैं ओपन वस्कुलर है। तो मोनोकॉट में वस्कुलर बंडल्स दे हैव नो कैम्बियम, मोनोकॉट में वस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, सो दे आर नॉट सेकेंडरी टिश्यूज प्रेजेंट, सो दे आर कॉल्ड क्लोज। जैसे ये आप देख रहे हैं मोनोकॉट्स में होता है, ये है क्लोज होते हैं। बट जाइलम एंड फ्लोएम विद द वस्कुलर बंडल इन ऑल्टरनेट मैनर एंड इन डिफरेंट रेडियाई, ये देखिए ऑल्टरनेट मैनर और डिफरेंट रेडियाई में प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर कॉल्ड रेडियल इन रूट्स। कंजॉइंट मतलब जॉइंट्स जो होते हैं, वस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस। इसमें ये देखिए अलग अलग रेडिया पे, इसमें सेम रेडियस पे जाइलम है, ये फ्लोएम है। तब जब सेम रेडियाई पे होते हैं तब इसको हम कंजॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स कहते हैं। और इस कंजॉइंट वर्टिकुलर बंडल्स में फ्लोएम दे आर जॉइंटली सिचुएटेड इन द सेम रेडियस। सच वस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स, बट कंजॉइंट vascular bundles usually they have phloem located on the outer side of the xylem. Conjoined bundles से phloem बाहर की तरफ होता है और xylem अंदर की तरफ। Now we come to the anatomy of the dicots and monocots plants. अब better understanding tissues are the root, stem and leaves. We will consider one by one. First we proceed to the dicot. Dicot root में क्या होता है? इस सोर्स अगर टीएस हम देखें तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं। मैनी सेल्स ऑफ एपिब्लेमा दे प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट। कई सेल्स में प्रोट्रूड यानी बाहर निकला होता है जो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं। इसके बाद सेकंड लेयर कॉर्टेक्स की होती है जो सेवरल लेयर्स थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। ये देखिए, ये आपका देख रहे हैं, ये डाइकॉट रूट है, ये मोनोकॉट रूट है। तो इस मोनोकॉट रूट में ये देखिए, ये एपिडर्म, ये एपिब्लेमा है, ये रूट है ना, ये प्राइमरी मोनोकॉट रूट है। तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको हम एपिब्लेमा बोलते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस भी से इन केस ऑफ द स्टेम, इसमें हम उसको एपिब्लेमा कहते हैं। और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, और जो इसके अंदर की लेयर होती है उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस बीच के सेल्स जो होते हैं वो कॉर्टेक्स कहलाते हैं। इट कंप्राइजेस सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेसेस के ये एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है विदाउट एनी दैट। एंड द टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मिस सेल्स दे हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips। इसमें आपको क्लियर नहीं है, हम आपको इसमें दिखाते हैं। ये देखिए, ये वाटर है, ये रूट हेयर्स है, ये एपिब्लेमा है, ये सिंगल रूट है, ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है। अब ये एंडोडर्मिस विदाउट इंटरसेलुलर सेल्स प्रेजेंट है। अब एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच का रीजन कॉर्टेक्स आता है ना। इसमें रेडियाई में जो होती है पेरिसाइकल, इसमें जो रेडियाई सेल्स होते हैं उसमें सिर्फ डिपोजिशन ऑफ सबरिन होती है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस है, इसके नीचे की सेल पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल के सेल्स के लेयर के नीचे ही आप ये देखिए स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है, डबल वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और स्क्लेरेनस सेल्स के नीचे जो ये सेल्स हैं ये फ्लोएम सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं ये फ्लोएम सेल्स कहलाते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जाइलम है, ये मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, और पिथ होता है छोटा सा बड़ा होता है। ये जो होता है कुछ केसेस में क्या होता है, जो ये डाइको जो टीएस है जैसे पी रूट है, किसमें क्या है ये सेंटर में। कुछ केसेस में ये देखिए मेटाजाइलम सेंटर में होते हैं, पिथ सेल्स छोटे होते हैं, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होते हैं। ये आपके ये फ्लोएम सेल्स हैं छोटे छोटे, और उसके ऊपर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहलाते हैं। मे बी 2 सेल्स 3 सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स में होते हैं जो पेरिसाइकिल के नीचे होते हैं। पेरिसाइकिल ही सेल्स जो होती है, कुछ सेल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं सबरिन, जिससे कि थिक वॉल्ड सेल हो जाते हैं। इन्हीं थिक वॉल्ड सेल को हम स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये डाइकोट रूट है,
ये आपका डाइकॉट रूट है, ये मोनोकॉट रूट है। तो ये जो डाइकॉट रूट है, यही मैंने स्ट्रक्चर आपको ये वाला दिखाया है, डाइकॉट रूट। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं, एंडोडर्मिस लाइज थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स रिफर टू एज पेरिसाइकल, तो जो कि उसको पेरिसाइकल बोलते हैं। इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। इसी पेरिसाइकल से ही जो है, जिसमें अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, रूट है इसमें डाइकॉट में, डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस सेल्स विच आर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर कॉल्ड कंजंक्टिव टिश्यू। जो पिथ सेल्स होते हैं, इनके बीच में उनको कंजंक्टिव टिश्यूज कहते हैं। जाइलम फ्लोएम के बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, उनको हम कंजंक्टिव टिश्यूज कहते हैं। एंड दे आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस में, 2 से 4 फ्लोएम पैचेस में प्रेजेंट होता है। कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल्स एंड पिथ दे कंस्टिट्यूट द स्टील। यानी कि ये पूरा जो वस्कुलर बंडल, कंजंक्टिव टिश्यूज, कैसे है, इसको मिला करके हम स्टील बोलते हैं। अब इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट, अब आप देखिए, ये देखिए मोनोकॉट रूट है। मोनोकॉट रूट में क्या है, स्मॉलर सिमिलर टू डाइकोटोड इन, बट इनमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ। इसमें पिथ प्रोमिनेंट होता है, कॉन्स्पिकस होता है। एंड कंपेयर टू द डाइकॉट रूट दे हैव द फीवर सर्कुलर, इसमें फीवर यानी कम जाइलम बंडल्स होते हैं, एंड यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट। पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड मोनोकॉट रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी, इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। जैसे ये देखिए, ये है टीएस ऑफ पोर्शन ऑफ द डिटेल स्ट्रक्चर लग गई है। अब ये मोनोकॉट रूट, अब ये देखिए, ये है मेस मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट में देखिए, ये आपका एपिडर्मिस है, ये सिंगल रूट हेयर अराइज है, ये आपका कॉर्टेक्स सेल्स है, ये है तो एंडोडर्मिस और एपिब्लेमा के बीच में, एपिब्लेमा वर्ड यूज होता है रूट के केस में, आपकी बुक में नहीं दिया है, ये गलत है वैसे। एपिब्लेमा वर्ड रूट के लिए यूज होता है, रूट के एपिडर्मल सेल्स के लिए। ये कॉर्टेक्स, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है, ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद नेक्स्ट ईयर ये पेरिसाइकिल, इस पेरिसाइकिल में ही देखिए ये सेल्स थिक हो गई, ये डबल जो पैरेन्काइमेटस डबल वॉल्ड इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सबरिन। तो ये है आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये है मेटाजाइलम, ये है प्रोटोजाइलम, ये पैसे, और इसके बीच में जो सेल्स होते हैं ये पैरेन्काइमेटस सेल्स, इनको हम कंजंक्टिव टिश्यूज होते हैं। और इसमें देखिए पिथ कॉन्स्पिशियस लार्ज होता है, ये मोनोकॉट्स में आप देखिए, ये मेज रूस का मोनोकॉट है, ये ऑर्किड का। इसमें देखिए ये पिथ जो है प्रॉपरली प्रोमिनेंट होता है, जबकि इन केस ऑफ डाइकॉट रूट्स में पिथ जो है कम होता है और नहीं के बराबर होता है। अब अगर इसमें हम आपको ये बताएं कि ये देखिए, ये डाइकॉट रूट, इसमें सेंटर में पिथ प्रॉब्लम होता है, ये मेटाजाइलम है, ये फ्लोएम सेल्स होते हैं, बंडल्स में होते हैं, और यहाँ पर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं जो कि थिक वॉल्ड होती हैं, ये रूट हेयर है, कॉर्टेक्स है, प्रोटोजाइलम, ये फ्लोएम सेल्स हैं, ये मेटाजाइलम है, ये पिथ है, ये पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस एंड एपिब्लेमा। तो जनरली जो डिफरेंस होता है डाइकॉट और मोनोकॉट में, it gives rise to the secondary roots and lateral meristem. Monocot, it gives rise to the lateral roots only. Here vascular bundles diarch to hexarch होते हैं, जबकि यहाँ हेक्सार से पॉलीआर्क, मतलब कई बंडल्स में, आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये कई बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट्स में। ये देखिए, ये कई, ये अलग अलग, ये देखिए, ये, और जबकि डाइकॉट्स में ये 2 से 4 या 6 तक हो सकते हैं। जैसे ये 4 है, इसमें देखिए 3 बंडल्स में है, इसमें 4 है, तो ये 4-6 होते हैं। और जबकि मोनोकॉट्स में आप देखिए ये कई चीज़ हैं, ये देखिए मोनोकॉट्स में 1 2 3 4 5, तो इसमें जो मस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कैम्बियम मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, डाइकॉट में प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ की तरह होता है। पिथ एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड, हियर पिथ इज फुली डेवलप्ड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। Now the next is dicot stem. As we know, transverse section of a typical young dicot stem, it shows that epidermis is the outermost protective layer of the stem, as you see in the figure 6.4a, this one, and covered with a thin layer of cuticle. यहाँ पर आप देखिए ये epidermis है और ये देखिए thin layer cuticle की present है इसमें। It may bear trichomes and a few stomata.
इसमें देखिए ट्राइकोम्स, यानी कि जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ट्राइकोम्स, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और अगर ग्रीन हार्बेशियस स्टेम है तो इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। Cells are arranged in the multiple layers between the epidermis and pericycle constitute the cortex। मतलब सेल्स जो है एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्टेक्स करते हैं। अब इस कॉर्टेक्स में आउटर हाइपोडर्मिस, जो बाहर की तरफ जो कॉर्टेक्स है उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये देखिए एपिडर्मिस है, जो बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है वो हाइपोडर्मिस कहलाती है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमा। ये जो है कोलेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। ठीक एपिडर्मिस के नीचे जो मल्टी लेयर्ड होता है, जो 3 से 4 लेयर्स की बनी होती है हाइपोडर्मिस, उसे हम कोलेनकाइमा कहते हैं। few layers of colony cell just below the brain, which provides mechanical strength to the, जो कि mechanical strength young stem को provide करता है। Cortical layers below hypodermis, they consist of rounded thin-walled parenchymatous cells which is conspicuous intercellular space। उसके नीचे पैरेंकाइमेटस सेल्स की होती है ये जो एपिडर्मिस जो होती है कॉर्टेक्स पैरेंकाइमेट, जिसमें कि इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट रहते हैं, राउंडेड पैरेंकाइमेटस सेल्स भी होते हैं। एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द लेयर इज कॉल्ड, और जो एंडोडर्मिस जो कॉर्टेक्स की जो पैरेंकाइमेटस लेयर की जो अंदर की तरफ जो लेयर्स होती है उसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। ये है एंडोडर्मिस। एंड द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स and they are referred as starch grains and pericycle। अब स्टार्च के जो एंडोडर्मिस है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो एंडोडर्मिस के बाद ये एंडोडर्मल लेयर है, एंडोडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो पेरिसाइकल की होती है। अब पेरिसाइकल, it is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma। स्क्लेरेंकाइमा जो हार्डर सेल्स होते हैं सेमिल्यूनर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इनमें ये देखिए, अगर इसको आप देखना चाहते हैं यू कैन सी इट ओवर हियर। ये देखिए, ये है आपका एपिडर्मिस, इसमें मल्टीसेलुलर हेयर्स हैं, डाइकोट स्टेम का है ये। उसके नीचे ये कोलेनकाइमेटस लेयर है, देखिए 3 जो है। उसके बाद ये पैरेनकाइमेटस लेयर है। अब इस पैरेनकाइमेटस लेयर के कॉर्टेक्स ये है हाइपोडर्मिस। अब इसके बाद जो ये नेक्स्ट लेयर है ये एंडोडर्मिस। अब इसके बाद ये पेरिसाइकल, ये देखिए स्क्लेरेंकाइमेटस, ये डबल वॉल्ड सेल्स है स्क्लेरेंकाइमेटस। और इस पेरिसाइकल के नीचे ये फ्लोएम सेल्स होते हैं। फ्लोएम सेल्स के नीचे ये आपके कैम्बियम सेल्स आते हैं, ये कैम्बियम सेल्स। उसके नीचे जाइलम, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर इन केस ऑफ स्टेम। बट इन केस ऑफ रूट, मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर and protoxylem is towards the periphery। ये होते हैं। तो large number of vascular bundles they are arranged in a ring, जो कि रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। और रिंग vascular bundles the characteristics of the dicot stem, conjoint open means the cambium present and endark protoxylem। Endark protoxylem means protoxylem is towards the center and metaxylem is towards the पेरिफेरी। और एक्सार्क कंडीशन रूट्स में होती है, जिसे मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द आउटसाइड, दैट इज द पेरिफेरी। सो ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द स्टेम। अब उसमें देखिए, इसमें देखिए लार्ज सेंट्रल पोजीशन है, ये देखिए पिथ ऑक्यूपाइड है, ये न्यूमरस वस्कुलर बंडल्स हैं, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, ये कैम्बियम लेयर है, ये वस्कुलर बंडल है। और इन वस्कुलर बंडल्स के बीच में जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं ये मेडुलरी शीथ होती है इन केस ऑफ डाइकोट स्टेम। अब अगर इस डाइकोट स्टेम का डायग्राम आप देखें अच्छी तरह से, आप यू आर एबल टू सी इट ओवर हियर। ये देखिए सनफ्लावर स्टेम है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए मल्टी सेलुलर हेयर्स है, ये क्यूटिकल आपको क्लियर दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद ये देखिए हाइपोडर्मिस, कोलेनकाइमेटस, ये है कॉर्टेक्स पैरेनकाइमेटस है, इसमें रेजेंट डक्ट्स भी प्रेजेंट सनफ्लावर के केस में। उसके बाद ये देखिए एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स पैचेस के फॉर्म में होती है। और इन्हीं पैचेस के नीचे ये देखिए वस्कुलर बंडल्स होते हैं,
ये वस्कुलर, ये सॉरी पैरेन्काइमेटस पैचेस के नीचे ये फ्लोएम सेल्स होते हैं, ये फ्लोएम सेल्स हैं, उसके नीचे ये कैम्बियम सेल है, उसके कैम्बियम सेल्स के नीचे ये मेटाजाइलम सेल्स होते हैं। ये मेटाजाइलम सेल्स जो होते हैं, ये मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द, मतलब जो बड़े सेल्स, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। और इन दो प्लेटोस के बीच में जो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, ये मेडुलरी शीथ फॉर्म करते हैं। और ये प्लेटोस, अब जैसे डाइकोट, अगर डायग्रामेटिक डायग्राम देखिए तो ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये देखिए पेरिसाइकल, ये वस्कुलर बंडल्स हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और ये पिथ है। आई होप डाइकोट स्टेम इज क्लियर टू यू। अब हम आते हैं मोनोकॉट स्टेम पे। मोनोकॉट स्टेम में क्या है? मोनोकॉट स्टेम इट हैज ए स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस, इसमें कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, इसमें स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ। जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ से कवर्ड होते हैं, एंड लार्ज पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यूज। वस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। कंजॉइंट मतलब एक ही रेडियल में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, लेकिन इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर, जो बाहर की तरफ होते हैं वो छोटे, एंड सेंट्रली लोकेटेड, जो सेंट्रल में होते हैं वो कुछ बड़े साइज के होते हैं। और फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज दे आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल्स। आप ये इसमें देखते हैं, ये देखिए मोनोकॉट वस्कुलर बंडल्स हैं, ये देखिए सेंटर में जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो बड़े साइज के हैं, बाहर की तरफ जो वस्कुलर पेरिफेरी की तरफ हैं वो छोटे साइज के हैं। ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं। इन एपिडर्मल सेल्स में आप देखिए, ये देखिए, ये एपिडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है, ये वस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम, फ्लोएम, और ये ग्राउंड टिश्यू यानी कि सेंट्रल से पिथ में पड़े हुए हैं। अब अगर इस स्ट्रक्चर को आप डायग्राम में देखेंगे तो आप देखिए, इसको मैं आपको दिखा, इसमें आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगी। देखिए ये क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस है, मेज स्टेम का ये डायग्राम है। ये देखिए स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यूज। अब ये देखिए इसके वस्कुलर बंडल, जो लाइसिजिनस कैविटी होती है, जो कैविटी, उसको लाइसिजिनस कैविटी, जो रेजन, ये लाइसिजिनस कैविटी होती है। ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है, और ये मेटाफ्लोएम है, ये प्रोटोफ्लोएम है, ये प्रोटोफ्लोएम, और ये जो सराउंडेड है बंडल शीथ से है। ये पूरा वस्कुलर बंडल्स है और इसमें लाइसिजिनस कैविटी होती है। अभी आपने बताया ना कि इसमें दे हैव द लाइसिजिनस कैविटी ओवर देयर। In your book only it is the mentioned. It has the water containing capacity. Cavities are present within the water. तो जो water containing cavities ये होती है, इन्हीं को बोलते हैं, ये होती है lysogenous cavities. अब अगर इसमें आप देखेंगे कि जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये आपका डाइकोट स्टेम है। अगर मोनोकॉट स्टेम और डाइकोट स्टेम के डिफरेंसेस को आप देखें, देखिए एपिडर्मिस प्रेजेंट, comparatively small without hairs. Cells are larger within hairs. हाइपोडर्मिस, मोनोकॉट में स्क्लेरेंकाइमेटस होती है, डाइकॉट में कोलेनकाइमेटस होती है। कॉर्टेक्स इसमें ये एब्सेंट होती है, जो क्योंकि इसमें जो हाइपोडर्मिस जो सेंटर में होते हैं इस प्रेजेंट, क्योंकि उसे पूरा प्रेजेंट है। इसमें सेवरल पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के। एंडोडर्मिस मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है, इसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट। पेरिसाइकल मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है, इसमें 1 और 2 लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। इसके अलावा इसमें देखिए मेडुलरी लेस मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती हैं, डाइकॉट्स में प्रेजेंट होती हैं। पिथ एब्सेंट होता है, इसमें पिथ लार्ज में है। इन प्लेस ऑफ द टिश्यूज नंबर 3 to 7 प्रेजेंट गाउंड टिश्यूज आर प्रेजेंट, एंड वस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड होते हैं मोनोकॉट्स में, और इसमें वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन a ring conjoined collateral oval, larger towards the oval, towards center, that is the oval, all of the same size, wedge shaped, bundle sheath absent, phloem parenchyma present, यहाँ पर phloem parenchyma absent. Xylem vessels either Y or U shaped, here xylem vessels more or less radial. ये देखिए comparative diagram भी आपको दिया है. I hope here in this I have shown you this because here the diagram it has the more clarity. This is of the monocot stem, this is of the dicot stem. You can click a picture and get it clear, right? Okay. Now we move to the next part of it. That is the internal structure of the leaf. डॉर्सीवेंट्रल लीफ मतलब डाइकॉट लीफ होती है, और जो मोनोकॉट ये आपका डॉर्सीवेंट्रल लीफ है, और ये आपकी मोनोकॉट लीफ है. अभी देखिए पढ़ के आपको बता दें. वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए डॉर्सीवेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शोज 3 मेन पार्ट्स. एपिडर्मिस, मेसोफिल, वस्कुलर बंडल. आउटर एंड लोअर एपिडर्मिस, ये मेसोफिल बीच के सेल्स होते हैं.
जो होते हैं, और ये वस्कुलर बंडल्स, ये तीन चीज होती है। ये वस्कुलर बंडल है, मेसोफिल सेल्स एंड इन एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस। एडेक्सियल एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस कहलाती है, जिसको कि हम एडेक्सियल एपिडर्मिस करते हैं, एंड लोअर सरफेस एबैक्सियल एपिडर्मिस होती है। लोअर सरफेस में ये एबैक्सियल एपिडर्मिस होती है। ऑफ लीफ इट हैज कॉन्स्टिट्यूएंस क्यूटिकल, इसमें लीफ में देखिए डबल लेयर्ड है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है मोर देन स्टोमेटा, स्टोमेटास आर प्रेजेंट मोर देन मदर। अब डॉर्सिवेंट्रल लीफ में मोर स्टोमेटा आर ऑन द लोअर सरफेस इन कंपैरिजन टू द अपर सरफेस। लेटर दे मे बी एन लैक स्टोमेटा, कुछ में स्टोमेटा नहीं भी है। टिश्यूज बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस दे आर कॉल्ड द मेसोफिल। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं उनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। विच पजेस इनमें क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि लीव्स के सेल्स होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस मतलब करते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। विच पजेस द क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी फोटोसिंथेसिस दैट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल। तो टू टाइप, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जिकाइमा। ये ऊपर ये है पैलिसेड पैरेन्काइमा और ये है स्पॉन्जी जिसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है। एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड, एडेक्सियली मतलब जो अपर एपिडर्मिस की तरफ होते हैं वो होते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, और जो लोअर एपिडर्मिस एबैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ होते हैं उसमें होते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये होते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होते हैं, दे आर लूजली अरेंज्ड, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other, oval or round, and loosely arranged spongy parenchyma below the palisade cell extend to the lower. So there are the numerous large spaces and air cavities between these cells. इसमें देखिए ये loosely arranged होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा air cavities present होती हैं, ठीक है। And the vascular includes the vascular bundles which कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिडरिप। जो वस्कुलर बंडल जो इसके मेन्स होते हैं, मिडरिप्स होते हैं, उसमें दिखाते हैं। साइज ऑफ द वस्कुलर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन, वेन्स की साइज के हिसाब से वस्कुलर बंडल्स का साइज होता है। वेन्स वरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट भाई मिडरिप ज्यादा चौड़ी होती है, वो वस्कुलर बंडल ज्यादा है। जो साइड रिप्स होती हैं वो पतली होती हैं, उनके वस्कुलर बंडल्स छोटे होते हैं। तो वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ बंडल शीथ, ये बंडल शीथ से कवर्ड होते हैं। एंड लुक एट द फिगर एंड सी द जाइलम, ये देखिए बंडल शीट से कवर होते हैं वस्कुलर बंडल्स, और इसमें जो होते हैं ये अंदर में जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, इन दोनों में प्रेजेंट होता है। देखो इसमें मैं आपको क्लियर करके देखिए ये डायग्राम, ये देखिए डॉर्सिवेंट्रल लीफ का है, ये अपर एडेक्सियल एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, और ये है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये बंडल शीथ है, कवर्ड है। इस बंडल शीथ में ये डबल वॉल्ड सेल्स होते हैं, ये जाइलम होते हैं, और इसके बीच में जो ये सेल्स होते हैं ये फ्लोएम होते हैं, और ये मेसोफिल रीजन्स है, और ये देखिए इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम आते हैं आइसोबाइलेटरल ओबुनोइड, ये क्यों होते हैं अभी आपको बताएं। पहले आइसोबाइलेटरल देखिए, द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ is similar to that of the dorsiventral leaf in many ways. It shows the following characteristic features. Stomata are present on both the surfaces of the epidermis. क्योंकि जो मोनोकॉट लीफ होती है वो स्टैंडर्ड स्टेज है, इसमें दोनों तरफ सनलाइट बराबर होती है, तो इसलिए इसमें जो मेसोफिल रीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। मेसोफिल रीजन जो डिफरेंशिएटेड in palisade and spongy parenchyma, in grasses certain axial epidermis along with the veins modify themselves into large empty colorless cells, so they are bulliform cells. Bulliform cells होते हैं। They in the leaves are absorbed water and are turgid, जो water absorb करते हैं और flexible होते हैं। मतलब जब वाटर एब्जॉर्ब टर्जिड कंडीशन तो फुली फ्लेश्ड कंस्टिट्यूएंट में वर्ड आता है, जो कि सबसे ज्यादा कंटेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है। लीव्स व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड्स टू मिनिमाइज वाटर, जैसे होते हैं लीव्स ऐसे फैलती हैं फिर बंद हो जाती हैं। तो पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल एसेक मेन वेन सीन इन द वर्ड। देखिए मोनोकॉट्स में क्या होता है, डाइकॉट्स में लीफ ऐसे होती, अपर सरफेस डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करती है, लोअर सरफेस डिफ्यूज सनलाइट। क्योंकि अपर सरफेस डायरेक्ट सनलाइट डिफ्यूज करती है इसलिए इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज पैलिसेड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। लोअर सरफेस में डिफ्यूज सनलाइट होती है इसलिए इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, और चूंकि ये डिफ्यूज सनलाइट होती है जो लोअर सरफेस में होते हैं डायरेक्ट सनलाइट, इसलिए लोअर सरफेस में ज्यादा स्टोमेटा होते हैं कंपेरेटिव। लेकिन जो मोनोकॉट लीफ होती है, मोनोकॉट लीफ
स्टैंडिंग स्टेट होती है, इसमें दोनों साइड जो है सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव, तो इसलिए में जो इसमें जो मेसोफिल रीजन होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। और इसमें जो स्टोमेटल कैविटी बोली एबैक्सियल एपिडर्मिस होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ स्टोमेटास आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड बिकॉज बोथ साइड रिसीव्स द सेम अमाउंट ऑफ लाइट। चूंकि दोनों साइड सेम अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव करते हैं, इसलिए इसमें दोनों साइड में नंबर ऑफ स्टोमेटास सेम होते हैं। ये सब स्टोमेटल कैविटी, इट इज सराउंडेड बाय द बंडल शीथ, you can see it over there, and these are the metaxylem, they are the protoxylem, और इसके बीच में आपके बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट है। अगर इसको आप क्लैरिटी से देखें तो देखिए, आपको मैं इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए मोनोकॉट लीफ है, ये बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटस हैं, इनको बुलीफॉर्म सेल्स है। ये बंडल शीथ है, ये जाइलम है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ये फेलम, इसके बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। ये मिड रिब का बड़ा बंडल है, साइड रिब्स का छोटा है। फिर जो मेन, जैसे जैसे मोटी रिब होगी तो मस्कुलर बंडल बड़ा होगा, पतली मेन लेट्स होंगी तो उनके छोटे छोटे बंडल्स होते हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पर ये पैरेन्काइमेटस शीथ प्रेजेंट होती है मस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे। ये मेसोफिल रीजन, ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और ये एयर स्पेस कैविटी, इसमें दोनों तरफ जो होते हैं कंडीशंस जो होते हैं सेम होते हैं। अब इसका डिफरेंसेस देखिए आप। डॉर्सीवेंट्रल लीफ डाइकॉट्स में होती है, आइसोबायलेटरल मोनोकॉट लीफ, मोर ऑन द स्टोमेटा, मोर ऑन द लोअर साइड, हियर इक्वल ऑन लोअर एंड अपर सरफेस। मेसोफिल रीजन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा, लार्ज इंटरसेलुलर। यहाँ पर स्पंजी पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट विच हैज वेरी स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, जिसमें एक सा होता है क्योंकि दोनों तरफ लाइट सेम अमाउंट होती है। बंडल शीथ पैरेन्काइमा की बनी होती है डाइकॉट में, ये देखिए ये जो बंडल शीथ बनी होती है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की होती है, made of parenchyma just above the villovascular bundle. Some parenchymatous cells or collinecymatous cells are present up to the apex, लेकिन मोनोकॉट्स में होते हैं पैरेन्काइमेटर, बट जस्ट अबव एंड बिलो द वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्क्लेरोमेटा। तो ये वस्कुलर बंडल, लेकिन अबव और बिलो जो होते हैं इसमें स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स मिलते हैं। जैसे इसमें ये डाइकोट लीफ है, ये देखिए ये सिंगल बंडल शीथ होती है, इसमें क्या होती है बंडल शीथ प्रेजेंट होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की ये होते हैं, ये देखिए लेकिन इसमें बंडल शीथ के ऊपर और नीचे ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स भी, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं ये डाइकोट लीफ में एब्सेंट होते हैं। ये मेसोफिल टिश्यूज होता है, ये अपर एडेक्सियल, ये एबैक्सियल होता है, ये लोअर एपिडर्मिस होती है, और ये स्टोमेटा है, स्क्लेरेन्काइमा है, फ्लोरम है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एनी डाउट anywhere, ask me in the comment section. If you like this video, please subscribe to my channel, and again we will meet in the next video. Thank you.